कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग ने बहुत अच्छा रिजल्ट 31st बिहार जुडिशरी में किया परफॉर्म, और ये प्राउड फील करने की बात है इंस्टीट्यूट के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए। आप जस्ट अपना एक्सपीरियंस कुछ हमारे कैंडिडेट को बताइए जो आपको फॉलो करे, जो आपने स्ट्रगल किया, यहाँ तक अचीव किया, और बीच में भी कोरोना पीरियड में आप लोगों ने स्ट्रगल किया, उसके बारे में। हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ये इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्था। पहले तो वेरी congratulations to all of you. We are like very happy that you qualified the 31st judiciary Bihar judiciary examinations and with a great rank as well. So I'll just ask questions one by one. And so I just wanted to ask you, how do you feel right now? आपको कैसा फील हो रहा है after qualifying your examinations? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जी, लेकिन फिर भी पहले मैं अटेम्प्ट दे दी, लेकिन इस बार मेरा अटेम्प्ट में सर लोग का साथ रहा। मैं यहाँ क्वार्टरली लॉ अकेडमी में यहाँ इस बार प्रिपरेशन की सर लोग का अच्छा साथ रहा। उन लोगों का डायरेक्शन बहुत अच्छा रहा। जो जो उन लोगों ने कहा वो सारा हम लोगों ने फॉलो किया, तो ये बहुत अच्छा हम लोगों जी। तो और सलोनी थोड़ा लाउडली। जी, जैसे आपने बोला कि आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं हम सारे कि नहीं हो पा रहा हम लोगों का। तो हाउ डिड यू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। स्टार्टिंग में जब रिजल्ट नहीं आया तो लगा कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर लगा नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी हम ही में, जिस वजह से मेरा ये मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसी पर वर्क किया और मोटिवेट होने के लिए अदर लोगों का भी देखा, तो फिर उन लोगों ने कुछ इंस्पिरेशन दिए, इस बार कीजिए कि कुछ कमियां रही होगी जो हो सकता है आपने उस समय पूरा नहीं किया होगा, तो अभी पूरा कीजिए तो आपका हो जाएगा। और वही हुआ। अच्छा, प्राची आचार्य ILS पुणे 49th रैंक में है ये। जस्ट यू टेल योर एक्सपीरियंस। So it was a very wonderful experience to be associated with this institute. Sir has always been an inspiration, and in fact GK GS classes as well as the law classes were very helpful. During the COVID times in 2020, when I was undergoing my LLM program from NUJS Kolkata, I thought that I would be able to do law. When I met sir for the first time, he asked me 2 questions, and I used to be very confident with that I would definitely clear law and know law according to my preparation. I would be able to do it. But when I met sir, I realized that there are few mistakes which I also need to cater to. So I joined both Manmohan sir's class, who has taught GKGS, as well as sir's class. It was very very good. In fact, the test series, every month we used to have a test series, which and after the test series we used to get the marks also. So we used to wait for the marks, and we used to see who are the people who are the top performers, and there used to be some kind of healthy competition between the candidates. And it was very very fortunate that I have been associated with this. In fact, the interview classes which sir has conducted was very very helpful. Like throughout from February to August, sir was very much attached with all of us, and he used to talk to us in subsequent intervals that nobody is less motivated, and people just try doing things, because there was delay in the conduct of the interview also. So everything was so smooth, and he used to give us motivational lectures also, which kept us going in the forward direction. So I'm really very thankful, and it is not only one person who actually make your result, it is a cumulative effect of a lot of people. So I really am very thankful for everything. And very inspiring. Apart from that, ma'am, what do you think, like what was the role of your family? Because what we see usually that since you are from, if I'm not wrong, 2020 batch, you completed your LLB 2020 and then you pursued also like LLM. What was your family's like role in throughout your journey?
because that actually matters a lot, like how your family is looking up to you. So what was the role of your family throughout the journey? So in 2019, when I passed out from ILS Law College Pune, I got a job. I got placed from ILS Pune. I was working in Delhi. I worked for 30 days and then I cleared CLAT also. So I thought that I would want to pursue. So I was not very sure that I would make it to NUJS Kolkata. I asked my father that I really want to pursue my future career and I want to study more. He was very, very supportive and he never said that you do not quit the job. He just straight away said that I'm ready to pay your fees, whatever amount it is, and you do not consider that you don't want to leave the job. And so that was a very motivating thing for me. I joined NUJS Kolkata. After that, it was there something in me that I want to join the judicial services, because at that point in time I was well aware that I would not be very comfortable in corporate jobs. There are a lot of struggles there which I would not want to do, and I want to deliver justice in the first place. So that is why from there my journey started. Very inspiring. well done. और मिस्टर रत्नेश मांझी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका स्ट्रगल। सर सबसे जरूरी सर मुझे ये लगता है कि लाइक आपने इतना स्ट्रगल किया है तो कुछ तो भी होगा जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया होगा कि लॉ की, जैसा कि आप बताते हैं, जैसा कि हम सबको पता चला कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। फैमिली फैक्टर, आपका समाज, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या इंस्पायर किया सबसे पहले तो लॉ करने के लिए, कि लॉ, व्हाई लॉ एंड देन व्हाई जुडिशरी? तो अगर आप ये बताएंगे तो ये काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा। करेक्ट। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं इंस्पिरेशन हुआ, मैं एक मजिस्ट्रेट थी कल्पना श्रीवास्तव, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि आप ठीक हैं, आप कर सकते हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन हुआ और उसके बाद मैं तैयारी के लिए मैंने सोचा। उसके बाद फिर मैं कोचिंग के लिए फिर प्रयास किया कि कहाँ इसका कोचिंग है। तो फिर मैं यहाँ हाई कोर्ट में गया एनरोलमेंट कराने के लिए, तो सर का वहाँ मेरा पर्चा था वहाँ पर मिला। तो फिर मैं सर से कांटेक्ट किया और यहाँ पर सर, मैं पहली बार यहाँ सर से यहीं पर मिलने आया था। तो सर को मैं सब कुछ बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हमारे समाज जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इस तरह का माहौल है। तो सर ने कहा कि ऐसा बात कुछ नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो सफल पाएंगे। और सर हमको बोले कि नहीं आप कर सकते हैं, और इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। जब मोटिवेट किया तो मैं आप यहाँ पर आया और सर के कोचिंग में एडमिशन लिया। और मैं ये जहाँ तक जो अब मैं पहुँचा हूँ, मेरे पेरेंट्स और हमारे जो सर हैं इनका भी बहुत मेरा इसमें जो है बहुत योगदान रहा। वेरी गुड। और आपके विलेज में, गांव में ये पहला ही केस होगा कि जो आप जज के पद तक पहुंचे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी सर। हमारे समाज परिवार माता पिता के लिए ये मैं पहला हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया। वेरी गुड, वेरी काफी प्राउड ऑफ इंस्पिरेशनल है सर ये पूरे लाइक सोसाइटी के लिए भी, और जिनको लगता है कि हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि नो एवरीबॉडी कैन डू दिस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं, और सर के जैसा सबसे बड़ी बात है कि सर का भी जो गाइडलाइन है, आपको क्या लगता है कि सर का क्या रोल है उसमें? सर को तो मैं कहूँगा स्पिरिचुअल तरीके से मोटिवेशन अपार्ट फ्रॉम स्टडी, क्योंकि आपको पढ़ाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि हर जगह मिलता है, खुद भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि अगर इस कोचिंग में मैं नहीं आता और सर से अगर मेरी मुलाकात नहीं होता, क्योंकि उस समय मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब था। तो सर का जितना फीस था मैं आज तक भी उतना जो है फीस कभी नहीं दे पाया। और सर जो है पहले भी और आज भी कुछ नहीं बोले, जितना हम दिए उतना। और यह बात कहने में आज भी मुझे रिलैक्स। कहीं से आके मिलते थे कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये हमेशा जो है हमको मोटिवेट करते रहे। और यहाँ तक का कोरोना काल में जो यहाँ तक जब घर हम रहे तो ऑनलाइन भी क्लास जो हम सर जो है फ्री में हमको करने का मौका दिया।
जी। तो हमारे साथ हैं तौसीफ अंसारी साहब, हम इनको साहब करके ही शुरू से बोला करते हैं। 2018 में इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर और क्लासेस इन्होंने स्टार्ट किया। तो 1, 2, 3 महीने में फील किए कि इनका स्किल, इनका नॉलेज बहुत अच्छा था। बेयर एक्ट पर पकड़ और एक्सप्लेन करना, चीज़ों को समझना, और क्लास में हम टाइम टू टाइम इनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, टेक्निकल टफ हम इन पर फेंक दिया करते थे। चलिए तौसीफ साहब बताइए तो आप क्या करते हैं, बहुत अच्छा आंसर करते थे। उसी समय हम इनको प्रेडिक्शन किए थे, वो वीडियो भी मेरा बना हुआ है जो उसके बारे में तौसीफ साहब बताएंगे। पूरे भरी क्लास में हम इनको उस समय बोले थे 2018 में टीचर्स डे, शायद आई थिंक टीचर्स डे था, हम बोले कि इनका रिजल्ट पक्का है, गारंटी 100। और वो वीडियो सेव करके ये अभी तक रखे हुए। बाद में इनका सिलेक्शन हुआ तो ये तौसीफ जी वीडियो हमको भेजे उस समय का टीचर्स डे का, और इन पर हम 3-4 मिनट स्पेशली फोकस करके बोले थे। और ये भी बोले थे कि इंशाअल्लाह, है ना, इंशाअल्लाह इस बार सफल होइएगा आप। इस बार अगले न्यायिक सेवा में आपका एक पद रिजर्व है और आप मजिस्ट्रेट बनिए बिहार में। ये बाहर जा रहे थे, अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट भी ये क्वालिफाई करने में कैपेबल थे, लेकिन मैंने कहा कि आप बिहार में जज रहेंगे। जस्ट तौसीफ साहब आप बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस कैंडिडेट लोगों को। सर मैं आपका क्लास 2018 में ज्वाइन किया था सर, और उसके बाद से ही मुझे लगा कि पहले मुझे बेयर एक्ट उतना कमांड नहीं था, लेकिन जब से मैंने सर के पास आया तो एक्चुअली मैं सर से ही बेयर एक्ट पढ़ना सीखा। और उसके बाद मैंने 2018 में ही अपीयरिंग कैंडिडेट के तौर पे राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दिया था, और वहाँ मैंने इंटरव्यू भी फेस दिया। एग्जैक्टली। और उसके बाद मुझे वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिली, और उसके बाद मैं एज अ लॉ असिस्टेंट ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में सर्व किया। और उसके बाद मुझे ये मौका मिला बिहार जुडिशियल सर्विस में आने का, और यहाँ पे, और उस वक्त मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था कि कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे हमेशा सर की बात याद आती थी, और वो वीडियो मैं एज अ मोटिवेशनल तौर पे वो रखा हुआ था कि जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था वो वीडियो में देखा करता था। अच्छा, यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग एंड यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट किया, और इसके वजह से सर मैं यहाँ पे हूँ। वेरी गुड। सर आई हैड दिस क्वेश्चन कि आपने अभी बोला कि यू वर अ लॉ असिस्टेंट इन पटना हाई कोर्ट एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू स्टडीड एंड यू क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। तो आपने ये मैनेज कैसे करा, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब एंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, सो हाउ डिड यू मैनेज इट? ऐसे सारे लोग को ये कोविड-19 के बारे में लगता है कि ये बहुत गलत हुआ, लेकिन वो मेरे लिए बेनिफिशियल था। तो क्योंकि उस वक्त कोविड-19 था, तो उस वक्त मुझे तैयारी करने में बहुत मदद मिली, और इस दौरान मैं लॉ असिस्टेंट और ये तैयारी में भी। जी, so COVID-19 helped you a lot for that. किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आपके? लाइक आपका सक्सेस बहुत बड़ी बात है, लाइक आपने क्वालिफाई किया, पहली बार ट्राई किया, आपने इंटरव्यू से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, और फिर वो डिसअपॉइंट आपको मोटिवेट क्या किया? लाइक आफ्टर इंटरव्यू, मतलब डिस्क्वालीफाई होना, कुछ तो भी मन में आया होगा कि नहीं फिर से एक बार और कोशिश करनी चाहिए, कोई तो भी एक पॉइंट होगा जो आपको हिट किया होगा कि हाँ फिर से कोशिश करनी चाहिए। Since my father is an advocate, his smile always motivates me. Whenever he talk about the judges, he always smile and makes a statement about the judge, how he acts. So that smile motivates me to become a judge. So basically it's like dream coming true, yours as well as your father's. That's a very good thing. वेरी गुड। So अब ये रोहित त्रिपाठी जी हैं, और ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किए हैं, और 35th रैंक इन्होंने होल्ड किया है, और बहुत कम टाइम में इन्होंने यहाँ पर आए। और हम नहीं कहेंगे कि टोटल क्रेडिट मेरा है, टोटल क्रेडिट किसी में मेरा नहीं है, सारे कैंडिडेट लोग का अपना टैलेंट है, उसके बाद हम कुछ कर पाए। लेकिन इन्होंने भी बहुत कम समय में इंक्लूडिंग जीके, जीएस, लॉ एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को किया। आप रोहित जी कुछ एक्सपीरियंस बताइए हम लोग को अपना।
सबकी जर्नी यूनिक होती है, हाँ, अपनी अपनी। exactly. आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी कैसे यूनिक? Exactly. सबसे बड़ी चीज मेरी जर्नी इसलिए यूनिक रही इस रिगार्ड में क्योंकि इट वाज नॉट प्लान्ड फॉर मी दैट आई विल टेक अप जुडिशरी बिकॉज एज सर नोस आई हैड प्रीवियसली आल्सो विजिटेड हिम वंस, सो आई माई सेल्फ वाज इन टू माइंड्स कि whether I should take it up or not, because once you take it up then you also have to pause other things that are going in your life. And I was in Delhi, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो हर रोज कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा था. So like Toshiji said, COVID also came to my rescue also. उस टाइम COVID-19 आया, हम घर आए यहाँ पे घर आने के बाद मेरे दिमाग में the first person who came to our mind was Sir himself. How did you get to know about this institute? So people in this fraternity knows about it. Yeah, that's what- that's So enough. it is judiciary and it's preparation for judiciary, so everybody knows about him and our GKGS and Manmohan sir. So it was known to all, and I visited him. I was not sure that I would take it, but after talking to him, कि आप कर सकते हैं, समय बहुत कम, तो आप कर सकते हैं, आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए, ये स्किल सेट चाहिए, बहुत सपोर्ट रहा. तो आई डिड नॉट बच इवन फॉर अ मोमेंट. इन्होंने जो बताया, जैसे बताया, अपने दिमाग को बिल्कुल उसी दिशा में अलाइन करके चले. और बीच बीच में बहुत डिमोटिवेटेड जैसे आप बोल रही थी यहाँ हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा गैप था. मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर बहुत बड़ा पॉज लगा हुआ कि ये जस्टिफाई कैसे करेंगे, इतना लंबा ब्रेक है, जर्नी इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने क्षमता पे भरोसा होना चाहिए. बहुत कुछ आएगा हिलाने के लिए रास्ते में. तो हम सर के पास आते थे, सर से लंबा डिस्कशन होता था कि सर अभी कैसे करें, लेकिन ये हम लोग को शांत करा के बिल्कुल ट्राई सर के करके पास एक बूस्टर डोज होता है, एक बार दे देते हैं, 1-2 महीने के लिए. तो बहुत बढ़िया था. आप चाहे वो किताब के मामले में हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के मामले में हो, कोविड में इतना अच्छा टाइम यूटिलाइज हुआ यहाँ पे, चाहे वो GKGS के लिए मनमोहन सर का क्लास हो, चाहे सर का क्लास हो. टाइम कभी हम लोग टाइम बीच में कभी वेस्ट नहीं किया. कोविड के टाइम पे भी एकदम प्रिसीजन के साथ हम लोग लगे रहे. चाहे इंटरव्यू, जब हमारा इंटरव्यू था कितना लंबा गैप आ गया था, लेकिन उस दिशा में भी हम लोग यहाँ पे 3-4 घंटे क्लास होता था और काफी रिगरस था वो. आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट बिकॉज आप यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग पोज्ड टू यू. लाइकवाइज इन इंटरव्यू यू डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग पोज्ड टू यू, सो एवरी क्वेश्चन इज अ सरप्राइज टू यू. So I think he created that environment here. Each student was also asking questions to the other. So that also that helped me. usually happens Yes. in the interview here. Yes, yes, You yes. take like one-on-one interviews. Yes. So I think credit, if I say for preparatory credit, if I have to give to someone like maybe both the sirs here, that they kept me anchored because इतना habit था नहीं मुझे लंबे समय तक पढ़ाई करने का. मैं बहुत सब चीज़ों को शॉर्ट में निपटा देना चाहता था. आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? एवरीबडी हैव दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ जो सच में आपको मतलब हर तरीके से सपोर्ट करता है. तो अगर आपको पूछे कि आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे सक्सेस, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग सक्सेस, तो लाइक लिटिल थिंग मैटर्स इन थ्रू आउट द होल जर्नी. तो आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? थोड़ा मुश्किल सवाल है. फिर भी किसी एक इंसान को तो नहीं एक नहीं, Exactly. मतलब जस्ट मेंशन, क्योंकि दैट एक्चुअली इंस्पायर्स अगेन कि आप आपकी पूरी जर्नी में कौन रहा है. प्रिपरेशन में आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. तो जब आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग में कैसे एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है. तो यहाँ पे सर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. जब घर पे गए तो माँ बाबूजी थे, वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हुआ. मेरी कंपेनियन रही है प्रिपरेशन में प्राची जी, तो सर इनका बहुत सपोर्ट था. हम लोग डिस्कस करते थे. हेल्दी कंपटीशन. वेरी That इनफैक्ट actually natural. दिस नीड्स टू बी टोल्ड. सर जब शुरू में मैं आया था तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते थे, तो इनका नाम हमेशा टॉप पे दिखता था. प्राची. Then I would tell my brother कि ये जो है ना, ये प्राची जी जो है, इनको इनके तक पहुंचेंगे ना तो लगता है Like she is a benchmark. क्वालिफाई कर She is जाएंगे. a benchmark. Yes, and towards the end of the test I started reaching her spot. इनका अच्छा सपोर्ट भी रहा है. प्राची के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जब इंटरव्यू का क्लास हम कंडक्ट करते थे तो बहुत टाइम इसको कंडक्ट करके लिए देते थे. ये खुद कंडक्ट करती थी इंटरव्यू का क्लासेस. कुछ हम क्वेश्चन पूछते थे और बाकी प्राची को हैंडल करने के लिए देते. तो बहुत सारे लोगों को तो कोचिंग से फायदा हुआ, प्राची के एक्सपीरियंस से भी फायदा हुआ है बहुत लोग. अभी भी हो रहा है सर. अभी भी हो रहा और है. जो लोग सुनेंगे उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि जस्ट बी लाइक प्राची आचार्य एंड यू आर सॉर्टेड. और इसमें जो भी रिजल्ट आया है, मतलब इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि केवल लॉ पढ़े, इंस्टीट्यूट में आए आपने लॉ पढ़ा.
अगर लॉ के साथ जीके आप ठीक नहीं कीजिएगा तो जीके बिना मनमोहन सर के सर भी है हमारे यहाँ पे। सो सर अगला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, मेंस में सर आपके ऑप्शनल पेपर्स क्या क्या थे? ये मैम मेरा फैमिली लॉ था और जिसमें हिंदू और मुस्लिम में होता है, और कमर्शियल लॉ था जी। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था। ओके। और सर उसके बाद जी भाई उसके बाद आपने क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए। भाई अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एंड देयर समटाइम समथिंग हैपेंस लाइक आप इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हो पाते, तो वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया एंड हाउ डिड योर इंटरव्यू गो? ये प्रेशर सर का यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ रिजल्ट आने के बाद, और यहाँ पर हम लोगों को सर का जो है जो भी सिलेबस उसके अनुसार जो इंटरव्यू का जो एरिया था, क्राइटेरिया था, सर ने हमको वहाँ पर जो भी था वो पढ़ाए और उसको फिर इंटरव्यू भी लेते थे बीच बीच में और पूछते भी थे। टाइम टू टाइम सेलेक्टेड मजिस्ट्रेट लोग भी आते थे। यस सर, टाइम टू टाइम मजिस्ट्रेट लोग हम लोगों को मोटिवेट करने भी आते थे यहाँ कोचिंग में। और उस समय बहुत प्रेशर था हम लोगों को, लेकिन जब जैसे ही क्लास चलता रहा तो बाद में थोड़ा जो है और प्रेशर थोड़ा रिलीज हुआ, और उसके बाद हम लोग का जो है इंटरव्यू हम लोग गए तो सर का आशीर्वाद लेकर गए, और वहाँ पर तो इंटरव्यू के समय हेजिटेशन तो था ही, लेकिन जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। कितने देर का था आपका इंटरव्यू, कितना ड्यूरेशन था? लगभग मेरा 8 से 10 मिनट का लगभग। सेटिस्फाइड थे आप देखे आने के बाद? आपको क्या लगा था कि हो जाएगा? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि मैम थी और जो थे वो पूछे, हम लगभग आंसर दे दिए थे। अच्छा जी। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैसा इंटरव्यू का कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो या कुछ ऐसा जो जो आप टफ share लगा हो, करना टेक्निकल चाहें, लगा हो आपको, जो आउट ऑफ इंटरव्यू सिलेबस हो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन? लॉ के अलावा कुछ? मेरे से लॉ का अलावा तो सर जो ऑनरेबल थे उन्होंने ही पूछा, और लॉ से नहीं पूछा, वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने पूछा। क्या बताया आपको? तो फिर मैंने जो पूछा उन्होंने कि इतना दिन से आप क्या कर रहे थे, जी। तो फिर मैंने बताया कि सर तैयारी कर रहे थे। तो फिर बोले कि आप LLM क्यों नहीं किए इतने दिन में? तो फिर हम बोले कि सर LLM नहीं कर पाए हम। फिर उसके बाद में पूछे कि आप प्रैक्टिस करते हैं? फिर भी हम बोले कि नहीं। तो उनका लास्ट मेरा क्वेश्चन था, और उन्होंने बोला कि केवल किताबी नॉलेज से आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप जज बनना चाहते हैं लोगों को दंड देने के लिए? तो फिर मैंने मुस्कुरा कर उनको जवाब दिया, नहीं सर, मैं राष्ट्र के हित में काम करने के लिए तथा लोगों को न्याय देने के लिए। वेरी गुड। तो आसिफ साहब, आपका क्या था ऑप्शनल पेपर? सर मेरा ऑप्शनल पेपर सर कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव और फैमिली और सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड अगेन आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, और प्रेशर होता है, सबको होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इंटरव्यू में यही है कि सबसे पहले अपने आप को काम रखें और बिल्कुल प्रेशर शो ना होने दें अपने ऊपर, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए उसको ईजिली आप टैकल कीजिए। आपके इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो, लाइक अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सारे लॉ से ही थे, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं बाहर निकल रहा था तो ऑनरेबल ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर स्लिम बॉडी। दैट वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने बताया क्या उसके बारे में? दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। मैं बस देख रहा था और वो खुद बोला था अच्छा, ये एक्सरसाइज या डाइट? तो फिर मैं मुस्कुरा रहा था, तो वो बोले कि अच्छा नेचुरल। तो मैंने बोला यार द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा ठीक है प्राची, अब तुम बताओ अपने ऑप्शनल और कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टॉट एंड कमर्शियल लॉ था। मेरा इंटरव्यू ओवरऑल 12 to 14 मिनट्स का चला, एंड जो मुझे ये समझ में आया कि इंटरव्यू में आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो देख लेते हैं। किसी भी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आप
आपके कामनेस, आपकी ऑनेस्टी को चेक किया जाएगा, आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा। आप ओवरऑल जो भी बैकग्राउंड अपना बताते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे से ऑनरेबल जस्टिस ने पूछा था ये सवाल कि आप हमेशा बाहर से पढ़ के आई हैं, तो आपको यहाँ पे बिहार में अररिया में पोस्टिंग मिल जाएगा, जहाँ पे मॉल भी नहीं है और भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप कैसे कोप अप करेंगे? तो इसका जवाब मैंने यही दिया था कि सर मैं बिहार से ही हूँ और सिर्फ पढ़ाई के लिए मैं बाहर गई थी, तो ये चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ और इन चीज़ों को मैं हैंडल कर सकती हूँ। और लॉ के भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि मेरे LLM सब्जेक्ट्स को थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को थे, उन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। एक इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने ये पूछा था, इररेसिस्टिबल इम्पल्स क्या होता है? तो ये थोड़ा सा वेदर इररेसिस्टिबल इम्पल्स ये एक डिफेंस है IPC में कि नहीं, और ये वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो मैंने यही बताया कि इररेसिस्टिबल इम्पल्स जो है वो कॉमन लॉ में यूज़ किया जाता है ये टर्म को। यहाँ पे 2-3 जगह पर इसका एप्लीकेशन दिखता है, जैसे कि सेक्शन 84, सेक्शन 85 और मर्डर का जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक एक्सेप्शन है, तो उसमें दिखता है। तो ऐसा बाकी सब नॉर्मल ऑप्शनल सब्जेक्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इन्होंने और दूसरे स्टेट का भी क्लियर किया है, एंड दैट इज नॉट अ वेरी इजी जॉब, लाइक यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड 2 स्टेट का अच्छा, जुडिशियल। बिहार के अलावा भी तो तुम्हारा कुछ स्टेट में क्वालिफाई अलग स्टेट में भी क्वालिफाई कौन सा स्टेट के बारे में बिहार के अलावा? सर मैंने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, तो यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद मेरा 16 सितंबर को वहाँ इंटरव्यू था, तब तक बिहार जुडिशरी का रिजल्ट नहीं आया था। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ एस्पिरेंट्स को कि मेरा ये ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि मैं एक सीट वहाँ पे खराब करूँ, बल्कि क्योंकि रिजल्ट नहीं था और ये चीज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और मैं वहाँ तक पहुँच गई थी, तो मैंने वो चांस नहीं लिया और मैंने वो इंटरव्यू दिया है। वो कैसा था? वो रिजल्ट अभी आया है? वो रिजल्ट अवेटेड है, बट वो इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा हुआ था। क्वेश्चंस जनरली उसमें वहाँ पे लॉ के ही पूछे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि आप हरियाणा में कैसे एडजस्ट करोगे, वहाँ के लोकल लॉ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अदरवाइज सारे एरियाज ऑफ लॉ, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन सब से पूछा गया। इंटरव्यू आप कुछ कहेंगे? आप रोहित जी, आपको ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। मेरा ऑप्शनल था कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स। इंटरव्यू मैं उस दिन बोर्ड पे लास्ट कैंडिडेट था इंटरव्यू होने के, तो जब सब पेपर पर सब वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप सबसे जब लास्ट में होते हैं तो थोड़ा सा आपके ऊपर मालूम होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है वेट करते करते। हाँ, और स्पेशली व्हेन यू सी पीपल आस्किंग अदर्स कि अच्छा आपका कैसा हुआ, आपका कैसा हुआ, तो उस केस में वेरी डिस्टर्बिंग। तो मैं चुपचाप से बैठ गया था, शांति से मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा कि आपका कैसा गया, आपका कैसा गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपका अलाइनमेंट वो खराब होता है। तो मेरे सिंस आई वाज लास्ट ऑन द बोर्ड एंड सो द बोर्ड मेंबर्स आस्क्ड मी if I will be able to sit for say 30 minutes, because that was their mindset कि अभी आप आए हैं तो आपको 30 मिनट बैठेंगे, क्योंकि I was last on the board और कुछ because of their some internal regulation, तो I sat for 30 minutes, about 30 minutes. तो वो काफ़ी थोड़ा सा ग्रिलिंग होता है क्योंकि you don't know what are they going to throw at you, बट अगर आप शांत काम रहेंगे तो अगर आपको 30 मिनट बैठा रहे हैं, अगर आप जवाब दे रहे हैं कुछ सवाल का कुछ नहीं भी दे रहे हैं, तो जब तक आप गलत सबमिशन नहीं कर रहे हैं तब तक आप सेफ साइड में, और बस आप हम्बली जो आता है उसका जवाब दें, जिसका नहीं आता है उसमें पोलाइटली बोले कि आपको उसमें सीखने की ज़रूरत है। तो यही स्ट्रैटेजी था मेरा, और 30 मिनट तक चला दें इंटरव्यू, बाकी तो रिजल्ट हो कुछ सकता ना कुछ तो इंटरेस्टिंग आपसे भी पूछा हुआ। 30 मिनट तो मतलब सिर्फ लॉ सस्टेन करने वाली बात नहीं है। नहीं था, बट क्योंकि माई बोर्ड वेंट टू द क्रिमिनल एरिया ऑफ प्रैक्टिस, ओके, तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था कोर्ट विजिट्स का, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का था, तो इनएविटेबली मेरे से वैसे ही क्वेश्चंस पूछा गया कोर्स से रिलेटेड। They asked you about your previous experience in your litigation field. वर्क से रिलेटेड बॉम्बे में भी मेरा जो काम था, आई वाज वर्किंग कहाँ बॉम्बे काम आल्सो, किया था आपने इसके पहले? बॉम्बे एंड दिल्ली। Okay. बॉम्बे आई वाज इन अ फर्म इन दिल्ली, आई वाज लिटिगेटिंग अंडर द सीनियर काउंसिल। ओके, तो वहाँ से सवाल, आप बिहार के लोकल लॉ से सवाल, जुडिशियल सैंक्शन पर सवाल जो आपका सेक्शन 366 है, वहाँ से वेदर इट्स अ जुडिशियल एक्ट और एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सो बहुत सारे बुक्स में बोला गया है कि ये दोनों है,
to seek judicial sanction to confirm death sentence, It's whether it is a contradictory. judicial or an administrative body. So, but the answer is that it is both in a way. तो वहाँ से कुछ सवाल हुए, तो राजुला क्या वो satisfied when I left the interview room? मतलब 30 minutes आपने sustain किया अच्छे से. Yes, I would. That's why you are sitting I would here like obviously to with a say very so. good I rank. would Yeah. like to say so. Yes. 35, right? Yeah, 35 is not a joke. it's very good. तो कंक्लूड करें हम लोग। Yes, sir. और कुछ बताना चाहती हो प्राची, थोड़ा बहुत और मैं ये- कुछ बताना चाहती हो? कुछ आप बताना चाहेंगे लाइक प्रो कुछ अपने तरफ से मैसेज? कुछ मैसेज जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए. मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से फेलियर या फिर जो इम्पेडिमेंट्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी बिहार जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई से ज़्यादा एक और चीज़ का बहुत उनको ध्यान में रखना होगा कि उनको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है. बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स रहते हैं, तो इनफैक्ट कोई भी जुडिशियल सर्विस, क्योंकि 3 फेज़ का एग्ज़ाम है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं करना है, आप ऊब जाओगे उस चीज़ को करते करते, बट अपने आप पे फेथ और पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और मैं उन सारे लोगों के लिए एक शायरी भी मतलब शायरी नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर का एक जो लाइन है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं. वाह, excellent। तो और तो कुछ बचा नहीं, सब Sir, ऑलमोस्ट anything एरियाज हम आप लोग लोग cover बोलना कर चाहेंगे? प्रो टिप्स देना और चाहेंगे. इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी हाँ, चीज़ ये yes. है कि जुरिस्प्रूडेंस ज़रूर पढ़कर जाएं आप लोग. Since it is not in the subject, Yeah, like, be I prepared see for it. jurisprudence. Jurisprudence is Very important. आप तो कुछ मेरा एडवाइस यही रहेगा, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन वैसा रहा है, हम बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़े, मोटे मोटे टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़े हैं, तो हम जो भी आपको बोलेंगे वो मेरा अपना अपना personal एक्सपीरियंस, experience. में टाइम था नहीं और वो सब किताब हम नहीं पढ़े. हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे कोई किताब नहीं पढ़े, कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े, जो प्रीलिम्स के टाइम पे तैयारी किए थे वही सब. सलोनी मैम से एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि सिंस यू आर मैरिड, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है 4 साल का, आपने 2 साल पहले तैयारी शुरू की, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि आपको 2 फैमिलीज को देखना पड़ा होगा, आपका छोटा सा बच्चा है, तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, आपका छोटा सा बेटा, आपके हस्बैंड, क्या रोल रहा उनका थ्रू आउट द जर्नी? थ्रू आउट द जर्नी मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा. जब इस तैयारी के लिए मैंने उनसे कहा कि मुझे ये सबसे ज़्यादा इसी में जाना है, मैं इसके लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ, तो वो मेरा सबसे ज़्यादा बोले नहीं, अगर तुम्हें ये करना है तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा. स्टार्टिंग में मेरा बेबी छोटा था तो मैं सर के पास तो प्रिपरेशन के लिए आ नहीं सकती थी, फिर मैं कर रही थी. कोविड टाइम मेरे लिए सबसे अच्छा रहा, और सर से चूँकि मेरे हस्बैंड पहले से ही मिले हुए थे 2019 में ही, तो फिर भी मैं सर के पास तो आ नहीं सकती थी, तो सर का जो भी स्टेटस लगता था कोविड टाइम में तो वो मेरे हस्बैंड देखते थे, तो उनको कहीं ना कहीं था कि ये अकेले थोड़ा सा इसका जो कुछ छूट जा रहा है, कुछ कमी जो रह जा रहा है, वो उनको भी था कि नहीं इसका ये पूरा होना चाहिए. तो सर का जो स्टेटस लगा, फिर वो मेरे हस्बैंड देखे, वो बिना मुझे बताए वो सर से आ गए मिलने के लिए, तो बोले हाँ मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सो आप उनको ज्वाइन करवा दीजिए. फिर हम सर से जुटे, सर से आके मिले. फिर थ्रू जर्नी सर का कोविड टाइम में 8 आवर्स क्लास चलता था, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था. उस समय बेबी को भी देखना और सब कुछ संभालना, तो मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा. जिस समय क्लास सुबह में चलता था वो उस टाइम मेरे बेबी को मैनेज कर लेते थे. फिर दोपहर इतने आफ्टरनून में मेरा बेबी सो जाता था, तो उस समय सर का लॉ क्लास चलता था, उस समय भी मैनेज हो जाता था. इवनिंग में जब सर का क्लास चलता था तो उस समय भी हस्बैंड, तब तक कोविड के टाइम सबसे अच्छा रहा है कि हस्बैंड का भी ड्यूटी कुछ कम होने लगे वर्क फ्रॉम होम हाँ, तो उस समय भी वो उसको संभालने लगे. तो इस तरह से मेरा सबसे अच्छा कोविड टाइम मेरे लिए वो भी बेनिफिट रहा. हस्बैंड का तो फुल सपोर्ट रहा, क्योंकि एक कोई भी मैरिड वुमेन के लिए यहाँ तक पहुँचना, वो भी बगैर हस्बैंड की सपोर्ट की, वो एकदम इम्पॉसिबल है. जब तक कि वो सपोर्ट ना करे कोई भी मैरिड वुमेन यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है. क्योंकि हाँ अगर डेडिकेटेड हैं हम तो करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सपोर्ट नहीं मिले तो फिर कहीं ना कहीं वो बहुत परेशानी challenging हो होता जाता है. है, परेशानी लेकिन बढ़ नहीं, जाती उनका है. सपोर्ट था.
फिर मैं बताऊंगी कि जैसे जीके जीएस मेरा बहुत ही अच्छा नहीं था। मनमोहन सर का बहुत ही अच्छा क्लास होता था। सर का जब क्लास होता था, सर जो इतना पूछते थे तो लगता था नहीं, सर के पूछने से पहले हम लोग को उसके पहले तैयार होना है। वो फिर जहाँ भी लॉ में कहीं भी हुआ परेशानी हुआ, वहाँ भी सर से बहुत ही बेनिफिट। सर बोले तुम लोग को बेयर एक्ट तो करना ही है। वो तो पीटी के टाइम तो सर हुआ, मेंस में सर हम सर के पास है, सर मेरा ये ऐसे है, मेरा राइटिंग खराब है। सर बोले तुमको सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग पर अपना फोकस करना है, वो करोगी तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आंसर राइटिंग पे इतना था कि अगर मैं 6 आवर्स पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ तो मैं 4 आवर्स अपने आंसर राइटिंग पर देती थी। सिर्फ 2 आवर्स पढ़ती थी, आंसर राइटिंग पे 4 आवर्स देती। वो मेरा सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहा है आपको। सर का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा मेरा उसमें, इसीलिए मैं यहाँ था। So this is more like कि shout out to the married women कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टेटस हैम्पर कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। आप बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आप डेडिकेटेड कहते हैं हैं कि तो द बेस्ट एग्जांपल इज सलोनी मैम यहाँ पे अभी। नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए जैसे हम बता रहे थे कोचिंग में बहुत सारा हुआ, लॉ का है और जीके जीएस का प्रिपरेशन है, इक्वली वेटेज हम देते हैं। तो ये मनमोहन जी है, हमारे स्टूडेंट ही हैं, एज ए स्टूडेंट आए थे और आज के डेट में जो भी रिजल्ट है तो इनके बिना रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जीके जीएस में एंड ऑल दैट सब कुछ मैनेज करना देखना बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किया। और ये रिजल्ट का क्रेडिट ये मेरा नहीं है सिर्फ और आपका नहीं है, सारे एक फैमिली और टीम का है, जिसमें कि इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है लाइक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू जा करके वापस आ जाते हैं, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है लाइक। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा और मतलब क्या सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आपको काफ़ी मतलब ध्यान देना चाहिए, कैसा रहा आपका इंटरव्यू उसके बारे में?